Hello students, today we are going to study our second lesson of class 11 from the book Snapshots, and the name of the chapter is The Address, and the name of the writer is Marga Minko. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. तो ये शॉर्ट स्टोरी है, वो कह रहे हैं इट इज़ अ पॉइग्नेंट अकाउंट. पॉइग्नेंट का मीनिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा टचिंग स्टोरी है. ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर. हॉलैंड में जब वॉर हुआ था उसके बाद क्या है, एक लड़की है जो कि अपनी माँ की कुछ चीज़ें ढूंढने के लिए वापस जाती है. वेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ अ अर्लियर लाइफ. अब जब वो चीज़ें उसको मिल जाती हैं तो वो क्या कह रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ अ अर्लियर लाइफ, की वो जो चीज़ें हैं उसको वापस बुलाती हैं उसके पास्ट में. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. हालांकि वो कह रहे हैं, वो डिसाइड करती है दैट शी विल लीव एवरीथिंग ऑल ओवर देयर एंड विल रिजॉल्व टू मूव ऑन. और वो किस चीज़ का संकल्प लेती है, आगे बढ़ने का. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. No, I don't know you. I am Mrs. S. daughter. तो अब वो जो लड़की है वो वहाँ जाकर उस लेडी से क्या पूछ रही है जहाँ वो गई है, दैट डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड. जो लेडी है वो क्या आंसर देती है, शी लुक्ड एट मी सर्चिंगली. When she had opened the door a chink, I came closer and stood on the step. उसने हल्का सा दरवाजा खोला और वहाँ पर आकर उसने क्या जवाब दिया, No, I don't know you. I am Mrs. S.'s daughter. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. तो उसने जो है अपना दरवाजा डोर पर ऐसे रखा हुआ था जैसे कि वो वहाँ पर उसे आगे आने से रोकना चाह रही है. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. रिकॉग्निशन का मीनिंग होता है पहचानना. तो वो कह रही है कि जब उसकी फेस की तरफ देखा तो इट सीम्ड एज इफ शी हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड मी. She kept staring at me in silence. Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it isn't her. I had seen her only once, fleetingly, and that was years ago. अब वो अपने आप से ये कह रही है that शायद क्या है, मैं मिस्टेक कर रही हूँ, शायद ये वो नहीं है, बिकॉज मैंने उसको सिर्फ कुछ ही पल के लिए देखा था और कई सालों पहले. Fleetingly means कुछ पलों के लिए. It was most probable that I had rung the wrong bell. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. तो अबाउट दैट लेडी शी इज सेइंग दैट द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, कि उसने उस दरवाजे को छोड़ा और वो साइड पर, स्टेप के साइड पर आकर खड़ी हो गई. व्हेन शी केम आउट आई सॉ दैट शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, कि वो मेरी माँ का हरे रंग का निटेड कार्डिगन उसने पहना हुआ था, जो उसके वुडन बटन से दे वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग. When she saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door, जब उसको ये लगा कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही हूँ तो उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छुपा लिया. But I knew now that I was right. Well, you knew my mother? I asked. Have you come back? said the woman. I thought that no one had come back, only me. अब उसने क्या कहा कि क्या तुम मेरी माँ को जानती थी. आगे से उसने जवाब क्या पूछा, उससे क्या पूछा, Have you come back? said the woman. I thought that no one had come back, only me. तो उसने जवाब क्या दिया कि सिर्फ मैं वापस आई हूँ. A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. अब जब उसने दरवाजा खोला तो वो कह रही है जो पैसेज था उसके पीछे जो रास्ता था वहाँ से एक मस्टी स्मेल जो है वो आई. मस्टी स्मेल होती है स्टेल स्मेल, जैसी बासी चीज़ों की स्मेल होती है. I regret. I cannot do anything for you. I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you. Another time. अब वो क्या कह रही है, उसने उसे क्या कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती. आगे से वो लड़की जवाब क्या दे रही है कि मैं स्पेशली तुमसे यहाँ मिलने के लिए ट्रेन पर आई हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ कुछ पलों के लिए. तो आगे से वो लड़की क्या जवाब देती है कि ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, अभी मेरे लिए बात करना पॉसिबल नहीं है. आई कांट सी यू अनदर टाइम. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. अब उसने
सर हिलाया और उसके बाद उसने क्या करा, बहुत कॉशियसली, बहुत सावधानी से जो है दरवाज़ा बंद कर दिया, ताकि घर में ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहती थी कि घर में कोई भी डिस्टर्ब ना हो. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The woman would have said. It was nothing. तो क्या कह रही है कि मैं वहीं स्टेप पर खड़ी रही, जो मेरे सामने कर्टन था बे विंडो का, वो हल्का सा हिल रहा था. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. तो किसी ने मेरी तरफ देखा और हो सकता है कोई पूछता मेरे लिए कि मुझे क्या चाहिए. Oh, nothing. The woman would have said. Woman ने कहा होगा. It was nothing. I looked at the nameplate again. Darling, it said, in black letters on white enamel, and on the jam a bit higher, the number 46. अब वो कह रही है मैंने दोबारा नेम प्लेट की तरफ देखा. It was written darling over there. It was in black letters and it was on white enamel. और जो जैम था, जो चौखट थी, उस पर थोड़ा सा ऊंचाई पर क्या था, there was a number written and the number was 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. अब वो कह रही है जब मैं स्टेशन पर वापस गई तो मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी. She had given me this address years ago and it had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. तो वो कह रही है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी और अचानक से मुझे क्या शक हुआ कि रूम में जो है कुछ चेंज था. I missed various things. My mother was surprised I should have not noticed so quickly. अब वो कह रही है कि मुझे वहाँ पर ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें जो हैं मिसिंग थी और मेरी माँ इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी that I have noticed everything so quickly. Then she told me about Mrs. Darling. I had never heard of her but apparently she was an old acquaintance of my mother whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. अब वो कह रही है कि मेरी माँ ने जो है मुझे किसके बारे में बताया. शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग. मैंने उनके बारे में, वो कह रही है, कभी नहीं सुना था, क्लियरली कभी नहीं सुना था, बट वो क्लियर था. बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर. लेकिन मेरी माँ की बातों से ये क्लियर था कि वो मेरी माँ की कोई पुरानी जान पहचान की थी. whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. वो अचानक से वापस आई थी और उनका कॉन्टैक्ट जो है उसको मिल गया था. Since then she had come regularly. Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. She took all the table silver in one go, and then the antique plates in that hung there. She had trouble lugging those large vases, and I am worried she got a crick in her back from the crockery. अब उसकी मदर उसको क्या बता रही हैं कि वो जब भी आती है वो कुछ ना कुछ सामान यहाँ से लेकर चली जाती हैं. जितने भी टेबल पर सिल्वर था, चांदी थी, वो सब वो लेकर चली गई है. और उसके बाद क्या है, देन द एंटीक प्लेट्स, जो पुरानी प्लेट्स थी उनको भी, दैट हंग देयर. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस. उसमें उसे किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही थी कि जो वो बड़े बड़े वासेस जो थे लार्ज, उनको उसे ले जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनको लेकर जाने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी. और मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है कि जब वो लेकर जा रही थी क्रॉकरी को, इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और जो वो क्रॉकरी लेकर जा रही थी उसकी वजह से उसकी जो बैक है उसमें शायद क्रिक आ गया था, शायद उसमें कहीं ना कहीं उसकी वो बैक जो है वो मुड़ गई थी या मोच आ गई थी. माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर. शी सजेस्टेड इट ऑन मी हर सेल्फ. It to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. अब वो कह रही है कि मेरी माँ ने जो है बहुत दया आ रही थी उन्हें उस लेडी पर, और उन्होंने अपना सिर जो है पिटिंगली अपना सिर हिलाया. उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मैं कभी हिम्मत नहीं कर सकती थी उनसे कुछ पूछने की. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. उन्होंने मुझे खुद इस चीज़ का सजेशन दिया. उन्होंने इनफैक्ट मुझे इंसिस्ट भी किया. She wanted to save all my nice things. कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ता है तो हमारा जितना भी सामान है वो हमें छोड़ना पड़ेगा. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. As if that is necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that and think about the risk she is running each time she goes out of her door with the full suitcase or bag. अब वो क्या कह रही है कि तुमने क्या उसकी ये बात मान ली कि उसे ये सारी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए. उसकी माँ ने क्या जवाब दिया, एज इफ दैट इज़ नेसेसरी, जैसे कि ये सब जरूरी ही था. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, कि अगर मैं उनसे इस तरह से बात करती तो उनको कितनी बेइज्जती महसूस होती. और सोचो उनके लिए कितना रिस्क है. वो जब भी यहाँ आती हैं, हमेशा जब वो यहाँ से बाहर जाती हैं तो उनके पास एक बहुत बड़ा सूट के सामान से भरा हुआ होता है.
My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that, we spoke no more about it. So she is saying that my mother looked at me and she noticed that I was not entirely convinced, कि मैं उनकी बातों से पूरी तरह से convinced नहीं थी. She looked at me reprovingly. उन्होंने देखा कि मैं उनकी तरफ जो है, She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. उन्होंने मेरी तरफ देखा with disapproval. Reprovingly means with disapproval, and after that we spoke no more about it. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. अब वो कह रही है कि इस बीच जो है मैं स्टेशन पर पहुंच गई. मैंने जो वहाँ पर चीज़ें थी रास्ते पर उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. मैं उन जानी पहचानी जगहों से होती हुई गुजर रही थी. दोबारा उन जगह से होकर जा रही थी जहाँ से मैं जो फर्स्ट टाइम जब वॉर हुई थी उसके बाद से मैं अब वहाँ से दोबारा होती हुई जा रही थी. लेकिन मैं क्या नहीं चाहती थी, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहती थी, बिकॉज इट वॉजेंट नेसेसरी. आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ. मैं खुद को अपसेट नहीं करना चाहती थी उन सारी गलियों को, उन सारे घरों को दोबारा देखकर जो कि मेरी यादों से जुड़े हुए थे, और वो टाइम जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस था. इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. I had got up late, and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad bag. अब वो कह रही है जब मैं ट्रेन में बैठी तो वहाँ दोबारा मिसेस डॉलिंग जो है मेरे सामने आ गई. तो मुझे क्या याद आया था, वो मोमेंट व्हेन आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम. मॉर्निंग का समय था एंड द डे, एंड दैट डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. The woman nodded and picked up the suitcase. Under the coat rack, she wore a brown coat and a shapeless hat. तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और क्या कहा, दैट शी देयर इज माई डॉटर. शी बेकन टू मी. बेकन का मीनिंग होता है पुकारना. शी कॉल्ड मी. जो वो लेडी थी, शी नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस. शी वोर अ ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट. डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस. इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर. नंबर 46. रिमेंबर दैट. अब जब वो उससे क्वेश्चन पूछे कि क्या वो दूर रहती हैं, इतना सारा भारी सामान इनके पास है, क्या ये दूर रहती हैं, तो उस समय वो कह रही है माई मदर टोल्ड मी द एड्रेस, एंड द एड्रेस वॉज मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 46. I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff. And naturally, I was also rather afraid of it. अब वो कह रही है कि मैंने वो सब याद रखा जो मेरी माँ ने बताया था, लेकिन मैंने इन सबको वहाँ जाने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया है. शुरुआत में वो कह रही है लिबरेशन के बाद, I was not absolutely interested in going there and seeing all that stored stuff. तो stored stuff का मीनिंग क्या होता है, कुछ ऐसी belongings that are kept in a safer place. So I was not interested in going there, and naturally I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. अब वो कह रही है कि मुझे वहाँ जाने में इंटरेस्ट भी नहीं था और साथ ही साथ मैं डर भी रही थी. अब डर क्यों रही थी, क्योंकि दोबारा वो कह रही है मुझे उन चीज़ों का सामना करना पड़ता जिनका कभी मेरे साथ कुछ कनेक्शन था और जो कि छिपी हुई थी. देर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड दे वर वेटिंग इन वेन. वेन का मीनिंग होता है यूजलेस. सो दे वर यूजलेस अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स. और इतने साल जो है उन्होंने वहाँ पर सफ़र किया था. दे हैड एंड्योर्ड देयर बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो सारी चीजें थी. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, रिमेंबर. लेकिन वो कह रही है धीरे धीरे जो है वो चीज़ें नॉर्मल होने लग गई. लेकिन एक दिन मुझे क्या एहसास हुआ, मैंने क्या नोटिस किया, दैट आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस, कि मैं उन सारी चीज़ों के लिए जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस होने लग गई थी जो कि अभी भी उस एड्रेस पर हो सकती थी. सो आई वॉन्टेड टू सी देम अगेन, टच दम अगेन एंड रिमेंबर देम अगेन. After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time.
Now, a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. तो वो कह रही है कि मैंने क्या सोचा वहाँ पर कि मेरी जो पहली विजिट थी टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस इट वॉज जस्ट यूजलेस, सो आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम. इस समय वो क्या कह रही है, देयर वॉज अ गर्ल हु ओपन द डोर, शी वॉज अबाउट 15 years old एंड शी केम आउट एंड आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम. अब यहाँ वो क्या कह रही है कि मैंने उससे क्या क्वेश्चन पूछा, दैट इज योर मदर एट होम. सो in this video, we had studied that there was a girl who went to Marconi Street number 46 to Mrs. Darling's house about the belongings which her mother had given to that lady. First meeting was useless, so she had decided to go there again and meet that lady again. So in the next video, we'll study that whether she had met that lady or not, what all she saw there in her room at her house. This all we'll study in the second video of the same lesson. Till then, thank you and have a nice day.